Hello and welcome back everyone to Hemlata Maths tutorial. Today is the first lecture of chapter Commission, Brokerage and Discount. When transactions like sale purchase are done through some middlemen, such middlemen are called agents. Agents are of two types, commission agent and brokerage agent. In commission there are two persons, principal and commission agent. For example, ITC company in Mumbai and agents in Mumbai. There are three types of agents, normal agent, del creditor agent and factor agent. नॉर्मल एजेंट वो एजेंट है जो कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में सेल करता है और जितना उसने सेल किया है, जितने प्राइस का सेल किया है, उतने प्राइस का कुछ परसेंटेज कमीशन उसको कंपनी से मिलता है. दैट इज कॉल्ड कमीशन ऑफ द नॉर्मल एजेंट. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज डेल क्रेडिटर एजेंट. अ डेल क्रेडिटर एजेंट गिव्स गारंटी टू हिज प्रिंसिपल and for that he gets additional commission. A del creditor sell product of ITC company to a shopkeeper and for some reason if shopkeeper cannot pay the amount of the goods to the ITC company, then del creditor takes the guarantee and he pay the amount to the ITC company. ठीक है. And for that guarantee he takes extra additional commission. That is called del creditor commission. ठीक है. नॉर्मल कमीशन प्लस डेल क्रेडिटर कमीशन होगा डेल क्रेडिटर का टोटल कमीशन. एंड नेक्स्ट इज फैक्टर एजेंट. ही कीप्स कस्टडी ऑफ गुड्स एंड एंटर कॉन्ट्रैक्ट इन हिज नेम. मतलब ये ITC कंपनी का प्रोडक्ट अपने गोडाउन में रखेगा और खुद ही बिल बना के वो सेल करेगा. ठीक है. तो ITC कंपनी फैक्टर एजेंट को एडिशनल पेमेंट देगी देन द नॉर्मल एजेंट, क्योंकि वो गुड्स को सेफली रख रहा है और कॉन्ट्रैक्ट बना के सेल कर रहा है. तो ये कंपनी का जो वर्क है वो रिड्यूस कर रहा है और ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहा है. तो फैक्टर एजेंट को एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है फॉर दैट वर्क. ओके. नेक्स्ट इज ब्रोकरेज. ब्रोकरेज इज द कमीशन पेड टू द ब्रोकर. अ ब्रोकर इज एन एजेंट who brings together buyer and seller. For example, when a flat is sold through a broker, then he gets commission from both buyer and seller. Next is discount. Discount means reduction. There are two types of discounts, trade discount and cash discount. Trade discount is given on list price or catalog price or market price, and cash discount is given for ready cash payment. So list price minus trade discount is invoice price and invoice price minus cash discount is net selling price. So trade discount we calculate on list price and cash discount we calculate on invoice price. Okay. So from this we get invoice price is equals to list price minus trade discount, list price minus trade discount, and net selling price is equals to invoice price minus cash discount, invoice price minus cash discount, and trade discount we calculate on list price and cash discount we calculate on invoice price. Let us do some questions from exercise. Exercise 1.1, question number 1. An agent charges 12% commission on the sales. Rate of commission is 12%. What does he earn if the total sale amounts to 48,000? Means total sale is here 48,000. What does the seller get?
मीन्स यहाँ पे हमें 2 पर्सन की अर्निंग फाइंड करनी है। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें एजेंट की अर्निंग फाइंड करनी है, व्हाट डज ही अर्न मीन्स एजेंट की अर्निंग, एंड नेक्स्ट इज व्हाट डज द सेलर गेट मीन्स सेलर की अर्निंग भी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट राइटिंग द गिवन इंफॉर्मेशंस, rate of commission is equals to 12%। ठीक है, फिर लिखा है यहाँ पे टोटल सेल अमाउंट टू 48,000 एंड टोटल सेल इज इक्वल्स टू 48,000 रुपीज। फर्स्ट पार्ट में हमें एजेंट का कमीशन फाइंड करना है ना, टू फाइंड कमीशन ऑफ एजेंट। तो कमीशन ऑफ एजेंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कमीशन इंटू टोटल सेल। तो 12% इंटू 48,000, 12/100 इंटू 48,000, 0 0 कैंसिल, 48 इंटू 12, 48 इंटू 12 96, 48 इंटू 2 इज 96, फिर 1 इंटू 48 576 and 1 0. So this is commission of the agent. First part complete. Next is what does the seller get? सेलर को क्या मिलेगा, जो सेल किया है ये इतना और इसमें से ये कमीशन का एजेंट उसको देना होगा सेलर को, तो दिस माइनस दिस, तो 48,000 माइनस 5,760, 0 48,000 5,760 0,4224, so 42240 is the earning of the seller. Question number 3. Mrs. Saraswati was paid rupees 88,000 as commission on the sale of computers at the rate of 12.5%. This means total commission of Mrs. Saraswati was 88,000 and rate of commission is 12.5%. If the price of each computer was 32,000, एक कंप्यूटर का प्राइस कितना है 32,000, and we have to find how many computers did she sell. तो यहाँ पे rate of commission given है, price of one computer given है, so from this we can find commission on one computer. ठीक है, फिर ये total commission divide by commission on one computer जब करेंगे तो हमें number of computers मिल जाएगा. Okay students, please read question from your textbook. So solution of question number 3. सबसे पहले लिखेंगे total commission is equals to 88,000. Rate of commission is 12.5%, कॉमा लिखा है मैंने. Price of one computer is equals to 32,000. ये सब given है. We have to find number of computer. तो पहले commission on one computer is equals to 12.5% on 32,000. एक कंप्यूटर का कमीशन फाइंड कर रहे हैं तो एक कंप्यूटर का प्राइस लिखा इनटू रेट.
तो ये आ जाएगा 12.5 अपॉन 100% है तो 100 ऑन है तो इंटू 32,000। 0 0 कैंसिल, डेसिमल के बाद एक डिजिट ज़ीरो के साथ एडजस्ट हो जाएगा तो 125 इंटू 32, इसको कर लेते हैं रफ वर्क में। 125 इंटू 2 इज़ 250, 125 इंटू 3 is 375, so it is 4,000 rupees. This is commission on one computer. Therefore number of computer is equals to total commission 88,000 divided by 4,000. 0 0 0 0 cancel, 0 0 cancel, so it is 22. ठीक है, यहाँ पे अगर रुपीस लिखोगे आप यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा। सो 3 is over. Question number 4. Anita is allowed 6.5% commission on the total sales made by her plus a bonus of 0.5% on the sale over 20,000. If her total commission amount to 3,400, find the sales made by her. तो यहाँ पे हमें टोटल सेल फाइंड करना है एंड रेट ऑफ कमीशन इज गिवन 6.5% ऑन द टोटल सेल। ठीक है, तो हम यहाँ पे टोटल सेल को ले लेंगे x, ये टोटल सेल पूछा है तो उसको ले लेंगे हम x। तो 6.5% ऑफ x प्लस क्या मिल रहा है उसको बोनस, बोनस कितना है 0.5%, तो 0.5% ऑन सेल ओवर 20,000। तो सेल ओवर 20,000 को कैसे लिखेंगे, x माइनस 20,000 इज सेल ओवर 20,000, मतलब 20,000 से ऊपर जितना सेल हुआ है दैट मीन्स टोटल सेल माइनस 20,000 करेंगे तो हमें मिलेगा सेल ओवर 20,000। ठीक है, तो होगा 0.5% इन टू x माइनस 20,000 इज इक्वल्स टू टोटल कमीशन 3,400। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। रेट ऑफ कमीशन इज 6.5% सबसे पहले, फिर यहाँ पे सेल ओवर, लेट टोटल सेल इज इक्वल्स टू रुपीज x, देयरफॉर सेल ओवर 20,000, उसको क्या लिखेंगे हम, ये टोटल सेल ज़्यादा है ना तो x पहले आएगा, डोंट फॉरगेट टोटल सेल ज़्यादा आएगा, टोटल सेल x माइनस 20,000, दिस इज सेल ओवर 20,000। ठीक है, रिमेंबर दिस। अब हमें और क्या गिवन है, टोटल कमीशन, इज इक्वल्स टू रुपीज 3,400। ठीक है, तो हम कमीशन प्लस बोनस करेंगे तो हमें टोटल कमीशन मिलेगा। ठीक है, बोनस इज 0.5% इंटू सेल ओवर 20,000, सो बोनस, सो कमीशन प्लस बोनस इज इक्वल्स टू 3,400। कमीशन कितना है 6.5% ऑन टोटल सेल मतलब ऑन x, एंड बोनस इज 0.5% ऑन x माइनस 20,000 इज इक्वल्स टू 3,400। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें x मिल जाएगा, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। 6.5% on x,
half can be written as 0.5% into x minus 20,000 is equals to 3,400. ठीक है, ये एज इट इज लिखा मैंने. अब मैं दिस इंटू एक्स फिर दिस इंटू 20,000 करूँगी. 0.5% ऑन एक्स प्लस इंटू माइनस इज माइनस 0.5% ऑन 20,000. ये बहुत इजी मेथड है. देखो अब ये दोनों को मैंने डेसिमल में कर दिया. 6.5% प्लस 0.5% विल बी 7% ऑन x, है ना. 6.5 प्लस 0.5 कितना होता है 7. तो ये हो गया 7% ऑन x माइनस इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे. 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10%, मीन्स अपॉन 100, ऑन मीन्स मल्टीप्लीकेशन, फिर 20,000 इज इक्वल्स टू 3,400. 0 0 0 3 zeros कैंसिल हो जाएगा. 7% ऑन x 5 into 20 is 100 is equals to 3,400. 100 प्लस हो जाएगा राइट में आके, तो ये हो जाएगा 3,500. फिर 7% ऑन x, तो 7/100 ऑन मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो 7x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3,500. फिर 7/100 राइट में जब आएगा ये फ्रैक्शन तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये होगा 3,500 इंटू 7/100 का रेसिप्रोकल क्या है 100/7. ठीक है, फिर 7 35 कैंसिल होगा, 5 2 zeros, फिर 5 0 0 0 0 4 zeros, मतलब 50,000. Therefore total sale is equals to rupees 50,000. Okay, now let us solve question number 5. Priya gets salary of rupees 15,000 per month and commission 8% on the sales over 50,000. If she gets 17,500 in a certain month, find the sales made by her in that month. तो process is same here. यहाँ पे 15,000 इक्वेशन कैसे बनेगा, मैं ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखिए इक्वेशन कैसे बनेगा, 15,000 पर मंथ जो मिल रहा है वो प्लस 8% ऑन सेल्स ओवर 50,000. तो हम सबसे पहले टोटल सेल को x ले लेंगे, तो सेल्स ओवर 50,000 क्या होगा x माइनस 50,000, सेम एज द प्रीवियस सम. ठीक है, x को मैंने टोटल सेल लिया इज इक्वल्स टू क्या आएगा 17,400. इन दिस वे वी कैन डू दिस सम. सेम मेथड है, यू कैन डू इट बाय योर ओन. अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं. द इनकम ऑफ ए ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड though the rate of commission is increased from 4% to 5%. Find the percentage reduction in the value of the business. Means यहाँ पे income of broker remains unchanged, मतलब income तो same है, rate of commission increase है, पहले 4% था अब हो गया है 5%, but still the commission is same, है ना. हमें फाइंड करना है फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस. बिजनेस का वैल्यू रिड्यूस हो गया है, पहले ऑब्वियसली ज़्यादा था अब कम हुआ है, तभी वो बैलेंस होके इनकम दोनों केस में सेम है. देखिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले रिडक्शन जो बोला है तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस हम 100 लेंगे,
let initial value of business is equals to 100 रुपीज़। फिर न्यू वैल्यू, चेंज्ड वैल्यू या फिर न्यू वैल्यू या फिर आप लिख सकते हो चेंज्ड वैल्यू, जो चेंज होके जो वैल्यू हुआ, वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज़। तो कंडीशन क्या गिवन है, 4% ऑन 100। पहले कितना कमीशन था, 4%। पहले कितना बिजनेस का वैल्यू था, 100। तो 4% ऑन 100 इज इक्वल्स टू, ये न्यू कमीशन रेट क्या है, 5% इंटू न्यू बिजनेस वैल्यू। तो 5% ऑन एक्स हो गया सिंपली। 4% ऑन प्रीवियस इज इक्वल्स टू 5% ऑन द न्यू। दोनों ये भी इनकम है और ये भी इनकम है, दोनों इनकम सेम है। यहाँ पे लिखा है इनकम ऑफ द ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे 4% मतलब 4/100 इंटू 100, 5%, 5/100 इंटू एक्स। 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 5/100 इंटू एक्स, 4 इंटू 100/5, 5/100 का रेसिप्रोकल 100/5 लेफ्ट में आके हो गया। फिर 20x इज इक्वल्स टू 80। पहले कितना था वैल्यू, 100, अब हो गया 80, मतलब वैल्यू रिड्यूस हो गया बिजनेस में। देयरफॉर रिडक्शन, देयरफॉर न्यू वैल्यू लिख देते हैं, न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़, बराबर। देयरफॉर रिडक्शन कितना हुआ, पहले था 100, अब हो गया 80, तो रिडक्शन होगा 100 माइनस 80 रुपीज़। 20 रुपीज़ रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, परसेंटेज रिडक्शन, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सॉरी, यहाँ पे रुपीज़ होगा। परसेंटेज रिडक्शन, तो जैसे हम परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं वैसे ही परसेंटेज रिडक्शन होगा। परसेंटेज रिडक्शन इज रिडक्शन अपॉन इनिशियल वैल्यू। जैसे कि हम यहाँ पे प्रॉफिट के टाइम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के टाइम प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो परसेंटेज रिडक्शन में क्या लिखेंगे, रिडक्शन अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, क्योंकि इनिशियल वैल्यू के बेस पे ही हम रिड्यूस हुआ है या इंक्रीज हुआ है वो फाइंड करते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, कहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो 20/100 इंटू 100%, ठीक है। ये फॉर्मूला है, 100% लिखना होता है और 0 0 कैंसल, तो आंसर आएगा 20%। देयरफॉर रिडक्शन, percentage reduction is 20%. Question number 7. Mr. Pawan is paid a fixed weekly salary plus commission based on percentage of sales made by him. Means पवन को फिक्स्ड मंथली सैलरी मिल रही है प्लस कमीशन मिल रहा है। कमीशन इज बेस्ड ऑन सेल, जितने का सेल हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उसको कुछ परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज है उतना उसको कमीशन मिल रहा है, ठीक है। और आगे, इफ ऑन द सेल ऑफ 68,000 एंड 73,000 इन 2 सक्सेसिव वीक्स, तो ये क्या है, टोटल सेल ऑफ फर्स्ट वीक एंड दिस इज टोटल सेल ऑफ द सेकेंड वीक, ये दोनों सेल है। फिर आगे लिखा है ही रिसीव्ड इन ऑल ₹9,880 एंड 10,180, मतलब ये क्या है, ये पवन का इनकम है। सो दिस इज इनकम ऑफ पवन इन द फर्स्ट वीक एंड दिस इज इन द सेकेंड वीक। तो फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम। वीकली सैलरी इज फिक्स्ड फॉर बोथ द मंथ्स, ठीक है, तो वो हमें फाइंड करना है। एंड परसेंटेज ऑफ द कमीशन हमें फाइंड करना है, कितना परसेंट कमीशन उसको मिल रहा है। तो इसमें
हम लिखेंगे सैलरी प्लस कमीशन इज इक्वल्स टू इनकम। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में हम फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, सैलरी, देयरफॉर सैलरी प्लस कमीशन हमें नहीं पता फर्स्ट वीक का कितना रेट कमीशन है, तो उसको लिखेंगे कमीशन ऑन कितने सेल पे मिल रहा है फर्स्ट वीक का कमीशन 68,000, तो कमीशन ऑन 68,000 और इनकम कितना है फर्स्ट वीक का 9880 ये है फर्स्ट वीक का। सिमिलरली सेकेंड वीक का हम लिखेंगे सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेकेंड वीक का सेल है 73,000, तो 73,000 इनकम कितना है सेकेंड वीक का 10180। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 1, 1000 है ये 9000 है, तो 2 इज ग्रेटर, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, सैलरी माइनस सैलरी दोनों कैंसिल हो जाएगा, कमीशन ऑन दिस एंड कमीशन ऑन दिस, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो हमें मिलेगा कमीशन ऑन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा सैलरी और यहाँ पे मिलेगा कमीशन ऑन 73,000 एंड 68,000, तो हो गया माइनस करके 5,000 इज इक्वल्स टू 10,180 माइनस 9880, 10180 माइनस 9880 300, so it is 300, therefore commission ऑन मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसल, 20 कैंसल, देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन रेट ऑफ कमीशन ये है फ्रैक्शन में 3/50 और फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100%। आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 3/50 इंटू 100%, तो 50 एंड 100 कैंसल, 2, 3 इंटू 2 इज 6%, कमीशन मिल गया। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन जो है यहाँ पे हमें पुट करना है इसको, परसेंटेज कमीशन ऑन दिस। ठीक है, देयरफॉर 6% ऑन 6800 लिखेंगे तो हमें ये क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, इज इक्वल्स टू, therefore commission is equals to rate of commission into sale, rate of commission है 6%, सेल है 68,000, तो कमीशन होगा 6% रेट ऑफ कमीशन इंटू टोटल सेल, तो 6/100 ऑन मतलब मल्टीप्लाई, ये 20 कैंसल, 0, 4080 रुपीज कमीशन। ठीक है,
तो हमें रेट ऑफ कमीशन क्वेश्चन में फाइंड करना था, वो मिल गया। अब हमें फाइंड करना है सैलरी। ठीक है, तो सैलरी के लिए हम यहाँ पे ये कमीशन जो है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 4080, तो हमें सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग कमीशन ऑन फर्स्ट वीक, ये फर्स्ट वीक का कमीशन है, इज इक्वल्स टू 4080 रुपीज इन इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में ये जो है ये फर्स्ट वीक का कमीशन है। वी गेट सैलरी प्लस 4080 इज इक्वल्स टू 9880, फिर राइट में ले जाके माइनस कर देंगे, तो 9880 माइनस 4080 कितना आएगा, 0085। तो सैलरी है, जो फिक्स्ड सैलरी है वो है 5800 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया एक आंसर। और दूसरा आंसर है कमीशन, रेट ऑफ कमीशन इज 6%, तो इसको लिख देते हैं, देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन is equals to 6% and fixed salary is equals to ₹5800। ओके स्टूडेंट, आगे के जो सम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।